अस्सलाम वालेकुम to everyone. I hope you are doing good. This is me, Hamza Gyani. Welcome to my page Trading Fadul. आज के वीडियो में डेली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का दैट हाउ द गोल्ड reacted in the past and how the gold can react in the upcoming day. Remember one thing, no one can predict the market up, but हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर तरीके से मार्केट का एनालाइज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी लेते हैं। Okay, just starting from the fundamental analysis, Iran war, Trump says ceasefire still in effect as Iran-US clash. Iran military said United States forces targeted an Iranian oil tanker in coastal waters and a second vessel near the UAE Fujairah port, while US airstrikes hit civilian areas in Bandar Khamir, Sering, and Hussein Island in southern Iran. Iranian air defenses were also active over western Tehran. The US military central command said its naval forces came under Iranian missile drone fast boat attacks in Strait of Hormuz and responded by emitting inbound threats and targeted Iranian military facilities as responsible for attacking US forces. Iran says US violated ceasefire. Iran accused of US violating the ceasefire and launching attacks against the country. Air defense was also activated over Iran with local media reporting that forces were responding to hostile. अच्छा जी कल बहुत एक पॉजिटिव थिंग्स चल रही थी और यूएस वाज सेइंग कि हम वेट कर रहे हैं ईरान के रिप्लाई का जिसमें पाकिस्तान भी मिनोरिटी और बना हुआ था बीच में मतलब एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था। बट हुआ ये कि ये आपने सिनेरियो देखा कि यूएस ने ईरान के बंदर बंदर खामीर बंदर खामीर सेरिंग एंड फिशेम आइलैंड जो है उसके साउदर्न ईरान पे जो है वो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। ईरानी डिफेंस फोर्सेस भी एक्टिव थी तेहरान में और यूएस का कहना था कि इन पे अटैक हुआ है। ईरान मिसाइल और फास्ट फोर्सेस जिसका उन्होंने जवाब दिया है। यही देखते यूएस फायर्स ऑन ईरानियन टारगेट्स एज ट्रम्प डिमांड्स डील फ्रॉम तेहरान। इसकी देख लेते हैं। US naval targets in Iran after the country fired on the three naval destroying sailing in the Strait of Hormuz. An escalation that had fragile ceasefire. तो इसका हम एक सेकंड इस तरीके से वॉर जो है वो बीच में चल रही थी। बट फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आया कि ट्रम्प से ceasefire still in effect as Iran US clash in Hormuz Strait. स्टिल इन इफेक्ट है सीजफायर कहना है। बीच में झड़प हुई है ये इसको कह सकते हैं हम जंग के बीच में झड़प हुई है। उसका नतीजा हम आपको चार्ट पे दिखा देते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि एक सेकंड ओके उसका नतीजा ये हुआ कि हाँ ये डे वन की कैंडल थी। ये कल गोल्ड ने अच्छा खासा एक बुलिश स्टांस लिया तकरीबन जब 60 के पास पहुंचा तो ये उसके बाद से गोल्ड ने गिरना शुरू किया और लेटर ऑन यूएस ने बहुत बड़ा ड्रॉप किया जब ये वॉर स्टार्ट हुई। बट आफ्टर दिस सिनेरियो कि यूएस ने बोला कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि स्टिल इन अटैक्ट है क्या कहते हैं just like we knocked them out again and we'll knock them out a lot harder violating the future they don't get if they don't get their deal signed fast phenomena social media truth uh, किधर चला गया wait a sec Hmm, खैर ये थी कि ट्रम्प से सीज फास्टिल इन इफेक्ट जब ये बयान आया है तो उसके बाद गोल्ड ने फिर दोबारा से एक बुलिश स्टांस अपना मेंटेन किया है और आप देख रहे हैं कि आज मार्केट ओपनिंग के बाद से बहुत ऊपर जा रही है। कल भी ऊपर जा सकती है लेकिन कहते हैं ना वो जंग को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और जंग में कुछ भी हो सकता है। तो ये रात को जो कल क्लैश हुआ उसके बाद मार्केट ने टोटली अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट गई। तकरीबन शाम 7-8 बजे तक देर हुआ था बाय बट उसके बाद फिर मार्केट ने एक बहुत बड़ा ड्रॉप लिया। तकरीबन 60 रुपये ड्रॉप लेती ही गई। इस द सिनेरियो मजीद भी हम चेक कर लेते हैं।
इसी को देख लेते हैं। Megaphone eliminated important intact targeted the latest clash at intention USM ठीक हो गया था। Iran leaders have indicated whether they will accept the term or the offer through their show little sign of yielding on their nuclear program or acceptable ठीक है। Consider reported the ceasefire was still in effect despite the back and forth downplaying Iran actions. While warning of they tripled us today, we blew them away. Trump said in a brief notification, uh, I'll let you know when there is no ceasefire. He added, you are not going to have to know. You'll just have to look at the big glow coming out of Iran. Okay. So here even so the president Donald Trump reported in Washington late Thursday that deal was still possible. तो जी दिस इज द करंट सिनेरियो फिलहाल सीज फायर और दोबारा अभी भी है तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट में अभी आपको गोल्ड में दोबारा बैंग नज़र आ रही है। इसी तरीके से हम अगर इसको ऑयल को देख लेते हैं इसमें वेट अ सेक तो ऑयल में भी आपको ये देखें एक बहुत जो है वो एक दोबारा बुल रन नज़र आया है जबकि ऑयल का भी कल बुरा हाल था 88 पे गया हुआ था। फिर ये ऑयल ने भी खुलने के बाद से दोबारा डंप लिया बट स्टिल नाउ गोइंग टू द अपवर्ड साइड। तो खैर गोल्ड ने तो अपनी दोबारा अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली है। बाकी थिंग्स आर नाउ गोइंग गुड फॉर द गोल्ड एंड देयर इज अ बाय फॉर द गोल्ड। अगेन वी कैन से देयर इज अ बाय फॉर द गोल्ड। ओके जी हमारी सेल की ट्रेड भी लग चुकी है। गिर गई मार्केट। ओके ठीक हो गया जी। तो देयर इज अ बाय फॉर द गोल्ड एंड सेल फॉर द ऑयल। ऑयल के लिए बाय और सेल होना हो बट देयर इज अ बाय फॉर द गोल्ड क्योंकि फिलहाल अभी पीस डील चल रही है। बाकी वो जंग के हालात वाकयात के साथ हम प्रशासन मेंटेन करते रहेंगे। फिलहाल तो मार्केट हमारी गोर गिर भी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैड डायरेक्शन भी लग गई है। ठीक है जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ज्वाइन बाय as ट्रेडल फजून जो है बाय डायरेक्शन बिकॉज दिस इज योर ओन कम्युनिटी। थैंक यू।